السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ارض پاک کے دفاع کا مقدس فرض انجام دیتے ہوئے پاک فوج کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع وادی تیرہ میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گردوں کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے مقدس مشن میں پاک فوج کی عظیم قربانیوں کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 6 نومبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر وادی تیرہ میں آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں آپریشن کی قیادت کرنے والے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نے جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک خوشدل خان، رفیق خان، لانس نائک عبد القادر بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں باقی دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مستحکم وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم اور حکومتی عہدیداروں سمیت دیگر سیاسی قائدین اور رہنماؤں نے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر سمیت دیگر جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی عظیم قربانیاں۔ حکومتی اور سیاسی شخصیات کا وادی تیرہ میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاک فوج کے جوانوں نے دفاع وطن کے خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا، سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور دیگر شہداء کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے قوم یکسو ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 4 فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، قوم اپنے بہادر جوانوں کی قربانی رائے گاہ ہونے نہیں دے گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا، پاک فوج کے بہادر جوانوں نے وطن کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ غزہ کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان طالبان کا نشانہ کیوں؟ کالعدم TTP اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ ضرورت پڑنے پر دونوں جتھے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ان دونوں کا جہاد فقط معصوم شہریوں کا خون بہانے تک ہی محدود۔ کالعدم TTP اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے 2 رخ۔ ضرورت پڑنے پر دونوں ایک۔ پاکستان میں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی ان حقائق کا واضح ثبوت۔ منفی سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور پشتون تحفظ موومنٹ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی جیسی لسانیت پرست جماعتوں کے قائدین کے پاکستان مخالف منفی بیانات بھی سامنے ہیں۔ آئی تھنک اس میں افغان گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، افغان انٹرم گورنمنٹ کو، کیونکہ ہمارے پاس کافی لیوریج ہیں، پاکستان نے یوز نہیں کیے۔ 6-7 لیوریج ہیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغان مہاجرین ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ فوڈ، گرین، سیمنٹ، کیا کچھ نہیں جاتا یہاں سے، اور وہاں سے اگر ٹیررزم ہی ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو ریئلائز، اور ہم اچھے نیبرز بن کے رہنا چاہتے ہیں، بٹ not be at the cost of Pakistan۔ تحریک طالبان پاکستان جیسی خوارج کی دہشت گرد تنظیم اور ان کو پالنے والی تحریک طالبان افغانستان کا نام نہاد جہاد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور بے گناہوں کے خون بہانے تک ہی محدود ہے۔ جہاد کے علمبردار افغان طالبان اور TTP صرف پاکستان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ غزہ جانے کے لیے ان کے پر جلتے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کی قیادت کے پاکستان میں براہ راست متعدد کاروبار اور دیگر مفادات ہیں، جن میں بے نامی جاتی، اسمگلنگ، منشیات اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا استحصال شامل ہے۔ جو موجودہ افغان حکومت ہے وہ ان ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے، مینج کرنے، سیکیور کرنے میں بالکل ناکام ہے، اور اس کے جو افراد ہیں، افسران ہیں، کرندے ہیں اور اہلکار ہیں وہ قریبی تعلق میں ہیں TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے، کہ یہ ہتھیار جو ہیں ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ سرحد پر غیر قانونی افغانوں کی ملک بدری، اسمگلنگ و منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہموار کرنے کے لیے پاکستان کی کارروائی نے براہ راست TTP اور تحریک طالبان افغانستان کے اقتصادی مفادات پر
اثر ڈالا ہے۔ حکومت پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، پھر چاہے غیر قانونی افغان شہری ہوں یا ٹی ٹی پی یا افغان طالبان، کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال جاری۔ میاں والی ایئر بیس پر ناکام حملے میں مرنے والے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساختہ نکلا۔ واصل جہنم کیے جانے والے دہشت گردوں کے پاس سے ملنے والے اسلحے میں RPG-7، AK-74، M4، M16 اور A4 شامل ہیں۔ امریکی ساخت کے ہتھیار افغانستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین کا استعمال اور امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد دہشت گرد آزادانہ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ویپن جتنے بھی تھے کندہار میں اور ساؤتھ میں اور ایسٹ میں، وہاں پہ بہت بڑی مارکیٹس بن گئی ہیں اور وہاں پہ ایک قسم کا یہ کاروبار ابھی وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس میں M4 سے لے کے M16، M4 رائفل جو ہے یہاں پہ $2400 میں مل جاتی ہے، اور اس میں باقی M16 بھی ہے، ہم ویز بھی شامل ہے، نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی شامل ہیں۔ تو پنجوائی کا علاقہ ہے ساؤتھ میں، تو بڑا مشہور ہے اس ویپن سیل کے لیے، سو اینی باڈی کین گو اور وہاں جا کے یہ ویپنز خرید سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی زوب کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوا تھا۔ ماہرین نے کہا ہے افغان انٹرم گورنمنٹ کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکنا ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ یہ ایک عظیم بیانیہ ہے جو فتوے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس بیانیہ اور پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے کہا کہ شرعی رائے کی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہمیت ہے۔ پیغام پاکستان علماء اکرام یک زبان۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا یہ ایک عظیم بیانیہ ہے جو فتوے کی صورت سامنے آیا ہے۔ اس بیانیے اور پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ عظیم بیانیہ اور وہ ایک عظیم فتویٰ اور ضابطۂ اخلاق ہے جس کو لے کر آج پاکستان کی ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر کالج اور یونیورسٹی آگے لے کر بڑھ رہی ہے اور ممبر و محراب سے آواز کو عام کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا شرعی رائے کی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہمیت ہے۔ پیغام پاکستان میں خودکش حملے اور اسلام مخالف سرگرمی کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ پیغام پاکستان میں یہی کہا گیا ہے اور اس میں اس قسم کے اقدامات کو مکمل طور پر غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خودکش حملے جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ پیغام پاکستان ہمیں نظریاتی حیثیت اور پاکستان کے موقف کو بیان کرتا ہے۔ پیغام پاکستان کو عام کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پیغام پاکستان کے خوبصورت پیغام کو ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری مدارس میں جو مختلف طبقات ہیں، مختلف لسانوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ کوئی بھی فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف یا مسلح شہریوں کے خلاف کوئی بھی مسلح تحریک چلتی ہے تو اس میں جو شخص بھی قتل ہوتا ہے وہ حرام موت مر رہا ہے، چاہے وہ قرآن کو لیبل لگائے چاہے حدیث کا لیبل لگائے۔ قرآن و سنت کا غلط استعمال ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اسلامی ممالک کی حفاظت اس وقت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ علماء اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری قوم افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کا 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز، مرکزی سیکریٹریٹ میں اجلاس کی قیادت کی، وفود سے ملاقات، کہا کہ مقصد پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ معاشی بحالی کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ۔ بول نیوز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز، مریم نواز کے ہمراہ جاتی عمرہ سے نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، احسن اقبال سمیت نون لیگی قیادت بھی موجود تھی۔ نواز شریف نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا پیغام دیتے ہوئے کہا ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ اکانومی ایسی چیز ہے جو جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے۔
तो इस पे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे होगी। तो इकोनॉमी में अगर हम अपना आम आदमी को कोई खिदमत कर सके तो इससे ज़्यादा खुशी हमें और क्या हो सकती है। सियालकोट के साबिक MPAs और टिकट होल्डर से मुलाकात में कहा, मुआशी बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। मैंने भी पिछले लाहौर में जो भी जलसा हमारा हुआ है उसमें मैंने अपना कहा था कि मैंने कहा कि अगर 1990 का मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं शायद साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से राब्तों का टास्क सौंप दिया। बोल न्यूज को मौसूल अंदरूनी कहानी के मुताबिक लीग की क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत से भी राब्ते का फैसला किया है। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से राब्तों का भी टास्क सौंप दिया। आइंदा का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मुखालिफिन मिलकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी मैदान में है और जीत भी रही है। हम ज़िमनी इंतखाबात से नहीं भागे, पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और उनका मुकाबला कैसे करना है। कराची के लिए नौजवान मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेगी। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं, आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्दी आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोजगार चाहते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिला है। तो जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज हो गई है। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीपी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आएँ। एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां जारी, सियासी गर्मागर्मी भी बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज हो गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन डर रहा है इलेक्शन से, कौन सी जमात ऐसी है जो वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। तारीखी फतेह, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, चाहे साउथ पंजाब हो, चाहे सिंध भर हो और सिंध के शहरी इलाके हो, सिंध के देही इलाके हो, आपको पीपल्स पार्टी एक मजबूती के साथ मिलेगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के मैदान में मुकाबले का चैलेंज देते हुए कहा, पीपी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज 21 अक्टूबर को हो चुका है। तमाम जमातें मैदान में उतरें और इलेक्शन की तैयारियां करें। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। कहा कि माजी में इस्तीफ़े ना ही धरने दिए ना ही इस्तीफ़े दिए, अब 2023 में भी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान ने सबसे ज़्यादा झूठे मुकदमे और सज़ाएँ काटी हैं, सबको यकसा मौक़े मिलने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी ये कह चुकी है कि हम इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हम ये भी कहते रहे हैं कि सारे आइनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। 18 में हमारे हाथ पांव बांधे गए,
हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हालांकि हम उसके नताइज को नहीं मानते थे। ना हमने इस्तीफे दिए उसमें से, ना हमने धरने दिए, हाँ हमने अपनी बात ज़रूर की। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये सब इलेक्शन लड़ेंगे, अभी फैसले सारे होंगे, हाँ सर, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? सबके पास लेवल तर्जुमान JUI असलम गौरी ने PP तर्जुमान फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि JUI किसी के बलबूते पर सियासत नहीं करती और किसी के फ़ोन या सहारे की मोहताज नहीं। असलम गौरी ने कहा कि PP सिंध में अवामी हिमायत से महरूम हो रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर गुस्सा इत्तेहादी जमातों पर निकाल रही है। तर्जुमान JUI ने मजीद कहा कि PP इंतखाबात की तैयारी और सिंध में अपनी सियासत बचाने की कोशिश करे। PP गैर संजीदा बयानात देने की बजाय हक़ाइक़ का सामना करे। रिटायर्ड जजेस को मुफ्त यूनिट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन इसके एवज पैसे नहीं। वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। मरासले में लिखा कि मुफ्त यूनिट के मुतबादिल के तौर पर रकम की अदायगी की रूल्स में गुंजाइश नहीं। रिटायर्ड जजेस को बिजली के मुफ्त यूनिट्स तो मिल सकते हैं, उसके एवज पैसे नहीं, वजारत खजाना ने वाज़ेह कर दिया। हुक्काम ने मरासला सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। लिखा, रिटायर्ड जजेस और उनकी अहलिया रूल्स के मुताबिक 2000 मुफ्त यूनिट्स के अहल हैं। मुतबादिल के तौर पर रकम की अदायगी की रूल्स में गुंजाइश नहीं। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने सोलर पैनल लगवाने के 22 मुफ्त बिजली की जगह अदायगी के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जायजे के लिए वजारत खजाना को भिजवाया था। खबर देंगे आपको वर्ल्ड कप से, जहां बांग्लादेश ने आज के मैच में श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज के इस मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 279 रन्स बनाए थे और 280 रन्स का टारगेट दिया गया था, जिसे बांग्लादेश की टीम ने बआसानी हासिल कर लिया है 41.1 ओवर में, और 7 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश ने यह हदफ हासिल किया है। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हुसैन ने 90 रन्स बनाए, शकीबुल हसन ने 82 रन्स की इनिंग खेली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता है। वजीर आजम ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने वाली एजेंसियों के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाजत को लाजिम करार दिया गया है। पीका ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत भी हासिल किए गए डेटा या रिकॉर्ड को खुफिया रखना लाजिम है। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। वफाकी हुकूमत ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज के मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा। टैक्स वसूली का प्लान, रवा माली साल के टैक्स इक़दामात पर FBR ने IMF को प्लान पेश कर दिया। वसूली का प्लान, रवा माली साल के टैक्स इक़दामात पर FBR ने IMF को प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक 10 लाख मजीद टैक्स गुजार तलाश करने का प्लान पेश किया गया। नए टैक्स दाहिंदा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुकदमात की वसूली का प्लान वजारत कानून से मशवरे के बाद पेश किया जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। FBR ने रवा माली साल जुलाई ta अक्टूबर में हदफ से ज्यादा वसूलियाँ की। नए माली साल के पहले 4 माह के दौरान FBR ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए जमा किए। FBR ने 8 माह में 6667 अरब रुपए की वसूली करना है। FBR ने रवा माली साल के 4 माह के दौरान 158 अरब रुपए के। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए गजा सिचुएशन की बात करते हैं। गजा में 31 रोज से जारी इजरायली हमलों में शोहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। शोहदा में 4104 बच्चे और 2641 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में 25,408 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों ने फ़लस्तीन में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली
इसराइली कार्रवाइयाँ तेज़ हो गईं, जहाँ 7 अक्टूबर से अब तक 152 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली फ़ौज मैदान जंग में अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी। 31 रोज से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 252 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक 10,022 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 4,104 बच्चे और 2,641 खवातीन भी शामिल हैं। इजरायली हमलों में 25,408 फलस्तीनी जख्मी हैं। जंग के बाइस गजा के 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 16 अस्पताल बंद, 192 तिब्बी वर्कर्स शहीद और 32 एम्बुलेंसेस तबाह हो चुकी हैं। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि इजरायली फौज मैदान जंग में अपनी नाकामियां छुपा रही है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में भी इजरायली कार्रवाइयां तेज हो गईं, जहां 7 अक्टूबर से अब तक 152 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों ने फलस्तीन में फौरी सीज फायर का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस जंग को हर सूरत रोकना चाहिए। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि गजा में आम शहरियों का कत्ल सफ़ाकियत है। घरों, पनागाहों, इबादतगाहों और अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है जो नाकाबिल कबूल है। इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाली अमरीका और यूरोपीय हुकूमतों को अवामी मज़ामत का सामना, इस बारे में बता रही हैं साथी एंकर महविश निसार। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमरीका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम ओहदेदारान ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की मुसन्निफ़ा जास्मिन ह्यूज़ ने इसराइल गजा जंग के खिलाफ एहतजाजी ख़त पर दस्तखत करने के बाद इस्तीफ़ा दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ के एक डायरेक्टर क्राइग मोखेर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानिया में मरकजी अपोजिशन जमात के फ़लस्तीनी निजात बरतानवी रुकन और माहिर तालीम कामिल हवैश ने इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी महकमा खारजा के डायरेक्टर जॉश पाउल ने अमरीकी फ़ौजी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस्तीफ़ा दिया। बरतानिया में रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 7 माहिरीन तालीम ने भी फ़लस्तीनियों के हक़ में इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानिया में ब्लैक बर्न काउंसलर साज अली ने भी लेबर पार्टी को खैरबाद कह दिया। दुनिया के 80 में अमीर तरीन शख्स समझे जाने वाले एरियान ऑफर ने भी एहतजाजन एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में यूनियन सेक्रेटरी ने यह कहते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया कि क़यादत बहुत हद तक सियासत ज़दा हो चुकी है। ट्यूनिस में सहाफ़ी बसाम बोइनी ने बरतानवी नशरियाती इदारे से इस्तीफ़ा दिया। बसाम गजा पर इदारे की नशरियाती पॉलिसी से मुतमईन नहीं थे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 1 माह हो गया। मुसलसल बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,770 हो गई, जिनमें 4,880 बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में अब तक कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। 7 अक्टूबर 2023 फ़लस्तीनी इसराइल की गुंडागर्दी से तंग हरकत में आया हमास का अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली सरजमीन पर चढ़ाई कर दी। इसराइल पर हमास के हमले में लगभग 1400 अफराद हलाक हुए। जवाब में इसराइली फ़ौज ने गजा पर बम बरसा दिए। गोलियों का जवाब रॉकेटों से दिया। बमों की बारिश करके गजा को मलबे का ढेर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें 4,880 बच्चे भी शामिल हैं। 2,509 ख़वातीन भी इसराइली सफ़ाकियत का निशाना बनी। 43 सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद हुए। अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 2 लाख रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। 32,000 घर मुकम्मल तबाह हुए। 54 मस्जिद शहीद हुई कि दर्जनों स्कूलों समेत 12 अस्पताल भी बमबारी की जद में आए। 1 माह से मुसलसल इसराइल गजा पर आग और बारूद की बारिश कर रहा है। दुनिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एहतजाज, रैलियां, सहूनी फ़ौज के नारे लग रहे हैं। जंगबंदी और जंग में वक्फे की अब तक 4 करारदादें पेश हुई जो वीटो की जा चुकी हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की रावलपिंडी में कार्रवाई। 4 ख़वातीन और 3 गैर मुल्की बच्चों को इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया। मुतासरीन का ताल्लुक अज़रबैजान से है। मुतासरा ख़वातीन को मुलाजमत का झांसा देकर अज़रबैजान से लाया गया था। एहलकारों ने 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई। कराची में साबिक DIG जेल खानाजात भी महफूज नहीं।
गुलशन मेमार में घर से 20 लाख के परिंदे चोरी हो गए। कराची में शाह लतीफ पेट्रोल पंप पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। कराची में डिजिटल डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म है। डिजिटल डकैती की वारदात कोरंगी गोदाम चौरंगी पर मोबाइल शॉप पर की गई। शाह लतीफ टाउन में डाकुओं के जत्थे ने दूध की दुकान लूट ली। कराची में डाकू राज, साबिक डीआईजी जेल खाना जात भी गैर महफूज। गुलशन मेमार में साबिक डीआईजी जेल खाना जात के घर की छत से मुलजिमान 20 लाख रुपए से जायद मालियत के परिंदे चोरी कर ले गए। उधर शाह लतीफ में पेट्रोल पंप पर फायरिंग से कैशियर के जख्मी होने का वाकया पुलिस ने टारगेट किलिंग का शाखसाना करार दे दिया। फायरिंग के वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शाह लतीफ टाउन में ही डाकुओं के जत्थे ने दूध की दुकान लूट ली। वारदात के दौरान डाकुओं ने फायरिंग की, दुकान से 4 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुतासिरा दुकानदार का कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने में ताउन नहीं कर रही। थाना शाह लतीफ में तो मैं 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ। कभी बोलते हैं दरखास्त टाइप कराओ, कभी बोलते हैं बिजली नहीं है, कभी ये है, कभी साहब नहीं है। दूसरी जानिब कराची में डिजिटल डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म। डिजिटल डकैती की वारदात कोरंगी गोदाम चौरंगी पर मोबाइल शॉप पर की गई। मुलजिम ने ऑनलाइन रकम मुंतकिली की दुकान को निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने ऑनलाइन शॉप से रकम मुंतकिल की। रकम मुंतकिली के दौरान मुलजिमान दुकान का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। फोन में ऑनलाइन रकम के 7 लाख रुपए मौजूद थे। जबकि डिफेंस फेस 8 खयाबान गालिब पर डाकू वारदात के लिए बंगले में घुस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी ने बंगले को घेरे में ले लिया। मुबैना मुकाबले में 3 डाकुओं को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी सखर इरफान समूह की निगरानी में शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। पुलिस की शाबिलो कच्चे में कार्रवाई। 2 मशकूक मुल्ज़िमान हिरासत में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़िमान के ठिकानों को नजर आतिश करके इलाके को सर्च किया। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मोबाइल सर्वेलेंस ड्रोन कैमरों का सहारा भी लिया जा रहा है। एसएसपी सखर कहते हैं कि कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची के 5 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध भर में बल्दियात के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबरान की 10 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी 2 जबकि PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर पाए। कराची के 5 अजला के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सदर UC 13, मलिर गडाब UC 7 से चेयरमैन और माड़ीपुर UC 3 से चेयरमैन की 3 नशिस्तें अपने नाम की। जिला जनूबी सदर UC 13 से पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने 3949, जबकि केमाड़ी माड़ीपुर UC 3 से पीपल्स पार्टी के ही सैफुल्ला ने 5466 वोट लेकर कामयाबी का जश्न मनाया। मलिर गडाब UC 7 से चेयरमैनशिप के लिए PP उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलीम मेमन ने 9932 वोट के साथ हरीफों को पीछे छोड़ दिया। बल्दियाती मैदान जीतने पर जेलों ने खूब जश्न मनाया। मेयर भी खुशी मनाने वालों। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियाँ, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान का हिस्स बाजार नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से रिकॉर्ड सतह 53,860 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रही तेजी। मार्केट 737 पॉइंट्स के इजाफे से 53,860 पर बंद हुई। दिन भर में मजबूरी तौर पर 365 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 53,944 जबकि कम तरीन सतह 53,166 रही। उधर करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपए का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए पर पहुँच गया, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 98 पैसे के इजाफे से 285 रुपए 29
पैसे पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब फी तोला सोना 400 रुपए की कमी से 2,14,200 रुपए पर आ गया। 1 ग्राम सोने की कीमत में 343 रुपए की कमी से 1,83,642 रुपए हो गई। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के वार, हुकूमत बलूचिस्तान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोयटा में कांगो वायरस के कंफर्म केस 18 जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद 80 हो गई है। सूबे के 3 अस्पतालों में मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। कांगो से मुतासरा सिविल अस्पताल की खातून फार्मासिस्ट को कराची मुंतकिल किया गया। कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 9 हो गई। कांगो वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी। कोयटा में कांगो वायरस के कंफर्म केसेस 18 जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद 80 हो गई। सूबे के 3 अस्पतालों में मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा के कांगो से मुतासरा वार्ड्स को सील कर दिया गया, जबकि ट्रॉमा सेंटर में भी मरीजों की अयादत के लिए आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई। कांगो से मुतासरा सिविल अस्पताल की एक खातून फार्मिस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 9 हो गई। 9 लोगों को हम लोगों ने आगा खान शिफ्ट कर दिया है। कल रात से वो डॉक्टर फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ 3 लोगों को कल रात हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो लोग हैं उनकी अलामात कम हैं, उनके प्लेटलेट्स डिक्रीज अभी तक नहीं हुए लेकिन अलामात मौजूद हैं। निगरान वजीर सेहत सिंध की हिदायत पर कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में 8 बिस्तर पर मुश्तमिल खुसूसी कांगो वार्ड कायम कर दिया गया है। कराची में अब तक कांगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवा साल अब तक कांगो से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 18 जबकि 58 अफराद कांगो से मुतासर हुए हैं। और अब शामिल करेंगे वर्ल्ड कप से मुतालिक खबरें। जुमेरात को श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। मुकाबला बारिश से मुतासिर होने का इम्कान भी है। मैच नामुकम्मल रहने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। वर्ल्ड कप के फाइनल 4 तक रसाई भारत और जनूबी अफ्रीका तो अपनी इब्तिदाई मंजिल पा चुके। अफगानिस्तान से जीते तो कैंगरूज तीसरी साइड होंगे जो टाइटल की दौड़ में शामिल रहेंगे। चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान उम्मीदवार। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो अफगान टीम का क्वालिफाई करना होगा बहुत दुश्वार। जुमे को आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को हराना होगा, रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। इससे पहले 9 नवंबर को कीवीज और आइलैंडर्स का टकराव होगा। मुकाबले में बारिश मुतवक्के, वॉश आउट हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। न्यूजीलैंड के 9 मैचेस से 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस सूरत में कीवीज का फाइनल 4 में जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर श्रीलंका को ब्लैक कैप्स शिकस्त देने में कामयाब रहे तो उनका इवेंट की आखिरी टीम में शमूलियत का इम्कान रोशन रहेगा। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 में जाने का इन्हिसार श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच के नतीजे पर। आइलैंडर्स के जीतने या बारिश से मैच नामुकम्मल रहना पाकिस्तान के फायदे में होगा। इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा। न्यूजीलैंड फातेह बना तो ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ कामयाबी से काम नहीं चलेगा। बड़े मार्जिन से फतह के साथ रन रेट भी बहुत बेहतर करना होगा। भारतीय शहर बेंगलुरु से कोलकाता पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। ग्रीन शर्ट्स कल प्रैक्टिस सेशन से अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे। हफ्ते को एडन गार्डन्स में बाबर एंड कंपनी इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान की टीम इवेंट के पॉइंट टेबल पर 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं बाद से गुजरे तो ईदगाह के 4 बुलंद मीनार तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। ईदगाह की 1964 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में तामीर की गई। इमाम काबा यहाँ ईद की नमाज की इमामत कर चुके हैं। मारूफ शख्सियात आम शहरियों के साथ नमाजें अदा करती हैं। हैदराबाद के कदीम ईदगाह में दाखिल हों तो 4 मीनार अपनी तारीख बयान करते नजर आते हैं। ईदगाह 1964 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में तामीर की गई। 1964 में हैदराबाद के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसको बनाया था, तामीर किया था। जिस तरह पुराने लोग बताते हैं कि ये जो जगह छोड़ दी गई थी पीछे चारों तरफ एक बाउंड्री के अंदर जो जगह है वो तकरीबन 4 एकड़ से ज़ायद है। ईदगाह को खूबसूरत बनाने के लिए दीवार के बजाय मेहराबों की सूरत की तामीर की गई। बुलंद बाला मीनारों से शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो हमारी ईदगाह जो है हैदराबाद का, ये एक तारीखी हैसियत रखता है। हमारे हैदराबाद की ये पहचान भी है क्योंकि बाहर से जो दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं वो स्पेशली इस जगह को, इस ईदगाह को देखने आते हैं। ईदगाह की खूबसूरत तारीख में इमाम काबा भी नमाज ईद की इमामत कर चुके हैं। अब भी हर साल नामवर सियासी शख्सियात इसी ईदगाह में शहरियों के साथ नमाज ईद अदा करती हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शब्बीर, बोल न्यूज, हैदराबाद। इस्लामाबाद में जारी लोक विरसा सिंध की सकाफत में रंग गया।
शुरका पहनामों से लेकर पकवानों तक सिंध की खूबसूरती और जायके के दीवाने हो गए। तफसील महापारा जमान की इस रिपोर्ट में। शहर इक्तदार वादी मेहरान के रंग में रंग गया। सिंध की मेहमान नवाजी हो या रस्मो रिवाज, तहजीब तमद्दुन में दिलों को छूता सिंध का मुनफरिद मकाम। इस्लामाबाद लोक विरसा में सिंध का खूबसूरत कल्चर मेले की शान बढ़ा रहा है। सिंध के खूबसूरत मलबूसात और खानों के स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। बहुत अच्छा लगा है सिंध का कल्चर, हमारे पंजाब कल्चर से डिफरेंट है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रंगा रंग है, सिंध के कलरफुल लाइफ है। जो संगीत है उसमें भी एक सुर है, उसमें भी इंसान एंजॉय करता है। इलाकाई रक्स पर हर कोई रक्स पर मजबूर हो गया। लोग तारीफ किए बगैर ना रह सके। इधर हमने बहुत सारे कल्चर देखे हैं, मगर मोस्ट फेमस कल्चर सिंध, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। आई लाइक दिस कल्चर। सिंधी सकाफत जितनी कदीम है उतनी रंगीन भी है। सिंधी सकाफत, मौसीकी और पकवान ने मेले में आए लोगों के दिल जीत लिए। कैमरामैन असद अब्बास के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।